Good morning class. Myself Jeenu Malik. I will help you to understand geography of class 10th. Dear students, I hope you all are in a good mental and physical state and you all are keeping your studies at priority. Dear students, today we are going to do some practical work. As we have already studied chapter 1 resources and development, Chapter 4 Agriculture and Chapter 5 Minerals and Energy Resources in our theory classes. But today we are going to do practice of map work. And through this map work we will be learning about the major soils found in India and major dams of India. Dear students, before we start practicing, we need some basic tools such as we required a map, a pencil, and we also required some colors. So dear students, with the help of these basic tools we are going to do our practical work. Along with this, dear students, there are few essential features of map which we should follow before filling it, such as there should be a title, like here major soil types. This is a title for this map, so there should be a title. Along with this we should mention a proper index which indicate various symbols used in the particular map. So we all do so because these activities helps us in map reading. So dear students, now we are going to start our map work from chapter 1 resources and development, and the title of our map work is major soil types. Dear students, as we all know, we have 6 major soil types found in India, namely forest and mountainous soil, alluvial soil, red and yellow soil, black soil, laterite soil, and arid soil. Now let's start with the first one, and that is forest and mountainous soil. As its name tells itself, it is found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. Now let's locate it on our map. Dear students, as I already told you, we need some essential features to locate the things on map. So here I am using a brown color to indicate forest and mountainous soil. So हम इस इंडेक्स में ब्राउन कलर को फिल करेंगे और उसके बाद इसको लेबल करेंगे. सो लेबल इज फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल. Now let's fill it on map. So this soil is found in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and in Arunachal Pradesh. So we have to fill this area with the help of brown color. So this complete area covered by forest and mountainous soil. Now the second soil is alluvial soil. Dear students, this is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plain are made up of alluvial soil. These have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga, and Brahmaputra.
This soil also extended in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, especially in the delta of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Now let's locate it on our map. So we are going to use a green color for alluvial soil. जैसा कि हमने पहले भी देखा था, तो हम यहाँ पर green color use करेंगे to indicate alluvial soil. So now we have to fill the second index with our green color. And now label it. Write down the name of the soil here. This is alluvial soil. So basically alluvial soil जो है वो rivers अपने साथ जो silt लेकर आती हैं उसी से alluvial soil की formation होती है. Now fill it on our map. So alluvial soil जो है वो पंजाब, हरियाणा, some part of राजस्थान का ये वाला पर्टिकुलर एरिया हमने कहा था कि नैरो कॉरिडोर में, सो यहाँ पर, और गुजरात का कुछ एरिया, एंड हेयर इन ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर आसाम के पास यहाँ पर, और इन द कोस्टल एरिया. सो नाउ लेट्स फिल इट. So these are the states covered by alluvial soil: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, narrow corridor of Rajasthan and Gujarat, Bihar, Assam, West Bengal and the eastern coastal plain area. Eastern coastal plain area, यहाँ पर हमें alluvial soil मिलती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनके जैसी बाकी की छोटी रिवर्स जो सभी अपने वाटर को ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में और डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एलुवियल सोइल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. सो ये कंप्लीट एरिया हो गया हमारा एलुवियल सोइल की फॉर्मेशन का, और ये सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेडेड भी है. नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सोइल. मैंने इसको ऑलरेडी फिल कर दिया कि हम इसको रेड कलर से इंडिकेट करेंगे. अब नाउ लेट्स फिल इट ऑन द मैप. सो मेनली हमें जो रेड एंड येलो सोइल की फॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है इग्नियस रॉक्स की क्रिस्टलाइन के पास. सो इग्नियस रॉक्स इंडिया में डेक्कन प्लेटू पर मिलती है और मेनली ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेटू पर. सो ईस्टर्न में हम यहाँ पर भी फिल करेंगे. सो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका का कुछ रीजन, केरला का रीजन. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेड एंड येलो सोइल जो है वो काफ़ी एरिया कवर करती है. अब हम इसको फिल करेंगे. So these states covered by red and yellow soil. अगर हम यहाँ पे ध्यान से फोकस होकर देखें तो हमें लगेगा कि पूरा जो ब्लैक सोइल रीजन है उसको सराउंड कर लिया है रेड एंड येलो सोइल ने. एक्चुअली पूरा हमारा जो डेक्कन प्लेटू है वो रेड एंड येलो सोइल के फॉर्मेशन से बना हुआ है. अगर हम ब्लैक सोइल की बहुत थिक लेयर को अगर उठा दें तो उसके नीचे भी हमें रेड एंड येलो सोइल देखने को मिल जाएगी. नाउ द नेक्स्ट सोइल इज ब्लैक सोइल. And we are going to indicate black soil by black color. So I'm going to fill this black color into this box. And now label it. So this is black soil. Now we have to fill it on our map. सो ब्लैक सोइल रीजन जो मेनली है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ पैचेस जो है हमें ब्लैक सोइल के वो हमें गुजरात के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और अपर पार्ट ऑफ आवर कर्नाटका ऑल्सो. सो यहाँ पर हमें
ब्लैक सोयल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. सो वी हैव टू फिल दिस. ब्लैक सोयल इज गुड फॉर द कॉटन प्रोडक्शन. सो इसलिए कॉटन ब्लैक सोयल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सोयल या रेगर सोयल भी बोला जाता है. सो ब्लैक सोयल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर ये वेट है तो उस केस में बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है और ड्राई होने पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइड क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं. सो दिस इज़ गुड फॉर आवर कॉटन क्रॉप. सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ ब्लैक सोयल. So dear students, this is the main reason of our black soil, and these are some patches also located in Gujarat. Our next soil is laterite soil. Dear students, laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. So ऐसी soil जिसका कलर brick के जैसा होता है. So अभी हमारे पास वैसा कलर नहीं है, so हमने इसको orange कलर के साथ लोकेट किया है. सो हमने इस बॉक्स के अंदर जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें ऑरेंज कलर को फिल किया. आफ्टर दैट वी लेबल्ड इट लेटराइट सोयल, एंड द मेजर एरियाज वेयर लेटराइट सोयल फाउंड इन इंडिया इज द वेस्टर्न घाट एंड सम पैचेज इन तमिलनाडु, सम पैचेज इन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, एंड सम पैचेज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन हेयर, स्मॉल पैच. सो मेनली हमें जो लेटराइट सोयल है वो इंडिया में पैचेस के अंदर देखने को मिलती है, और इसका रीजन है लेटराइट सोयल मेनली फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटर के आसपास ये सोयल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जहां इंटेंस हीट और ज्यादा रेनफॉल होता है. सो इसके पीछे स्टोरी जो है, जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था तब भी हमने इसकी स्टोरी को डिस्कस किया था कि जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर एशियन प्लेट की तरफ मूव करते हुए आई, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडियन प्लेट इक्वेटर पर रही थी, जिसकी वजह से लेटराइट सोयल के पैचेस जो हैं वो डेवलप हो गए थे इंडिया में. और बाद में भी ये प्लेट जो है जब एशियन प्लेट से आकर हिट हो गई, उसके बाद भी जहां पर भी इस तरीके की इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट जहां पर रहा, वहां पर ये लेटराइट सोयल के पैचेस आज भी हमें देखने को मिलते हैं. सो मेनली दिस इज आवर लॉन्ग पैच ऑफ लेटराइट सोयल. सो यहाँ पर हमें लेटराइट सोयल देखने को मिलती है. अवर नेक्स्ट सोयल इज एरिड सोयल, और एरिड सोयल को हम डिनोट करेंगे या इंडिकेट करेंगे बाय येलो कलर. सो यहाँ पर मैं इस बॉक्स में येलो कलर को फिल करूंगी, और उसके बाद इस येलो कलर को फिल करने के बाद हम इसको लेबल करेंगे. सो मैप फिलिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि इंडिकेट हमें इंडेक्स में हमें अपने सिंबल्स को अच्छे से बनाना है, सो दैट मैप रीडिंग बहुत कन्वीनियंट तरीके से हो पाए. सो दिस इज एरिड सोयल. जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसी सोयल जो एरिड हो, जिसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम हो, और इंडिया के अंदर इस तरीके की सोयल जो है वो हमें राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलती है. सो हम अब इसको मैप के ऊपर फिल करेंगे, और मेनली एरिड सोयल हमें राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, हम कह सकते हैं कि अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो हमें एरिड सोयल जो है देखने को मिलती है. सो दिस इज द रीजन ऑफ एरिड सोयल. सो इसी के साथ हमें हमारा जो चैप्टर 1 का मैप है वो कंप्लीट होता है. हमने फिल कर ली है आवर ऑल 6 सोयल्स, मेजर सोयल्स ऑफ इंडिया. यहाँ पर छोटा सा पैच हमारा मेघालय वाले रीजन में भी रहता है लेटराइट सोयल का. सो यहाँ पे भी हम इसको फिल कर लेंगे. ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो है सोयल फिल हो गई हैं, कंप्लीट फिल हो गई हैं, और आफ्टर फिलिंग द होल मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस मैप work of chapter 1 concludes, and now we are going to start map work of chapter number 3. Dear students, the name of the chapter is water resource, and the title of our map work is dams. In total we will be locating 8 dams. Dear students, we are not only going to locate the dams,
we will be knowing on which river the dams are built. By doing so, we can remember the exact location of dams more efficiently. Now, let's start with the first one. And the first dam is Salal Dam, which is built on Chenab River in Jammu Kashmir state. मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए रिवर का नेम और साथ के साथ किस स्टेट में वो लोकेटेड है उस स्टेट का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए. सो द नेक्स्ट वन इज भाखरा नांगल डैम built on Satluj River in Himachal Pradesh. Third one is Tihri Dam built on Bhagirathi River in Uttarakhand state. Number 4, Rana Pratap Sagar built on Chambal River in Rajasthan state. Next is Sardar Sarovar Dam built on Narmada River in Gujarat state. Next is Hirakund Dam built on Mahanadi River in Odisha state. Next is Nagarjun Sagar Dam built on Krishna River. This dam is built on कृष्णा रिवर और कृष्णा रिवर जहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट उसके साथ साथ तेलंगाना स्टेट का जो बॉर्डर शेयर करती है और वहाँ पर जब फ्लो करती है तो वहाँ पर कृष्णा रिवर पर नागार्जुन सागर डैम बिल्ट है आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में और तेलंगाना नालकोंदा डिस्ट्रिक्ट. सो यहाँ पर ये कृष्णा रिवर में ये नागार्जुन सागर जो डैम है वो शेयर करता है बॉर्डर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का. नेक्स्ट इज तुंगभद्रा डैम बिल्ट ऑन तुंगभद्रा रिवर. तुंगभद्रा जो रिवर है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. सो तुंगभद्रा रिवर पर बना हुआ है हमारा तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटका स्टेट. So these are total 8 dams which we have to locate on our India map. Now let's locate them on our map. So first of all there must be a title of our map. So the title is dams. Second thing is index. So यहाँ पर हम index बनाएंगे और इंडेक्स में यहाँ पर हम सिंबल देंगे. मैं यहाँ पर सर्कल सिंबल बना रही हूँ. सो ये सर्कल है. सो नाउ लेबल इट डैम्स. यहाँ पर सिंगल सिंबल बना है क्योंकि हम डैम्स को लोकेट कर रहे हैं और डैम्स के लिए अलग अलग से सिंबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट इज सलाल डैम. सो सलाल डैम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है. पेंसिल की भी रिक्वायरमेंट होती है. सो मैंने रफ वर्क जो है वो पहले से ही पेंसिल के साथ किया हुआ है. सो मैंने यहाँ पेंसिल से टिक किया है. तो मैप को फिल करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि पहले हम पेंसिल से ट्राई करें ताकि हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वी कैन इरेज इट. सो जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर पर यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है. सो बीइंग अ बोर्ड स्टूडेंट्स हमें लोकेशन का भी बहुत ध्यान रखना होगा. सो यहाँ पर चेनाब रिवर पर लोकेट है. नाउ वी हैव टू लेबल इट. सो लेबल करने के लिए हमने यहाँ पर मेंशन किया इसे सलाल. सो वी लेबल इट सलाल डैम. सो फॉर कन्वीनियंट आई एम गिविंग इट अ नंबर. सो दिस इज नंबर 1. नेक्स्ट इज नंबर 2 भाखरा नांगल. सो यहाँ पे मैंने इसको नंबर 2 मेंशन किया है और लोकेशन है भाखरा नांगल डैम की ऑन सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट. सो यहाँ पर लोकेशन है भाखरा नांगल डैम की. नाउ आई एम लेबलिंग इट भाखरा नांगल.
हमें ध्यान रखना होगा कि हमें लेबल भी करना होता है। थर्ड वन इज टिहरी डैम। सो टिहरी डैम built on Bhagirathi river in Uttarakhand district. So it's number 3. Now label it Tihri. Number 4, Rana Pratap Sagar on Chambal river in Rajasthan district. So here is Rana Pratap Sagar. We must particular for their location. Now label it Rana Pratap Sagar. Number 5 is Sardar Sarovar Dam built on Narmada river in Gujarat. So here is Sardar Sarovar Dam, number 5. Now label it Sardar Sarovar Dam. Number 6 is Hirakund Dam on Mahanadi river in Odisha region, Odisha state. So यहाँ पर आपका number 6, name it Hirakund. Number 7 is Nagarjun Sagar built on Krishna river in Andhra Pradesh and Telangana region. So यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन जो है स्टेट वो बॉर्डर शेयर करते हैं. सो हेयर ऑन दिस बॉर्डर इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नलगोंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, यहाँ पर लोकेटेड है हमारा नागार्जुन सागर. नाउ लेबल इट and the last one is Tungabhadra Dam built on Tungabhadra river in Karnataka state. So here is Tungabhadra Dam. Now is label it. This is our 8th dam. Now label it so these are total 8 dams which we have to locate on our political map of India. I hope today's video lesson is very fruitful for you all. So with this we have completed map work of chapter 1 resources and development and chapter number 3 water resource. Map work of chapter number 4 agriculture will be discussed in our upcoming class. Till then, stay safe and healthy. Do hard work.